السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تاریخ کے صفحات میں اس شعر کو اپنا عنوان بنا کر زندگی گزارنے والے میری نظر سے گزرے ہیں۔ میں قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی بڑی شوقین ہوں، جس میں نوجوانوں کے کردار پر میری نگاہ خاص ہوتی ہے، کیونکہ نوجوان ہی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم ملت کی روح اور جان ہوا کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم کے دھڑکتے دل ہوا کرتے ہیں۔ ہر قوم کی ترقی اور خوشحالی انہی نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ جب جب بھی ان نوجوانوں کے سوئے ہوئے دل بیدار ہوئے، تب تب ان نوجوانوں نے اپنی قوم کو ترقی و خوشحالی اور سربلندی کی اونچی چوٹیوں پر پہنچا دیا ہے۔ اسی کے پیش نظر میں نے اپنے معاشرے کے نوجوانوں پر نظر دوڑائی تو میرا دل یہ دیکھ کر باغ باغ ہو گیا کہ کچھ نوجوان باقاعدہ دینی، ثقافتی، اصلاحی، معاشرتی اور تعمیری کاموں میں بڑے منہمک ہیں، جس میں سے ایک نوجوان پر میری نظر جم گئی جو ہر ایک کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہے، جو ہر حلقے، ہر طبقے، ہر مکتب فکر اور مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا رہا ہے۔ میرا یہ مقالہ ہر اس نوجوان بھائی اور بیٹے کے نام جو اپنی قوم کی ترقی میں کوشاں ہے، جو اپنے اندر دین کی اٹھان پیدا کر کے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے میں دن رات ایک کر رہا ہے۔ میرا یہ مقالہ ہر اس نوجوان کے نام جو یہ کہتا ہے، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ میرا یہ مقالہ ہر اس نوجوان کے نام جو یہ کہتا ہے، بھلاؤ گے کہاں تک تم میری باتیں میری یادیں، بھلاؤ گے کہاں تک تم میری باتیں میری یادیں، میں ہر ایک موڑ پہ اپنی نشانی چھوڑ جاؤں گا۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میرے اس مقالے کا عنوان ہے، میں پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتا ہوں۔ ہر انسان کا زمانے طفولیت گمنامی کا دور ہوتا ہے۔ محدث، مفسر، امام الوقت، خطیب العصر، مفکر، ادیب، شاعر، حکیم، صحافی، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان وغیرہ، یہ تمام نسبتیں بعد میں ان کے نام کا حصہ بنتی ہیں، مگر بچپن میں ہر انسان ایک بچہ ہوتا ہے، معصومیت کا پیکر، ماں کے دل کا قرار، باپ کی آنکھوں کا نور، بہنوں کی توجہ کا مرکز، کھیل کود میں وقت گزارنے والا، ضد پر اڑ جانے والا، گھر کی ویرانیوں کو اپنی کلکاریوں سے آباد کرنے والا، رلا کر ہنسانے والا، ہنسا کر رلانے والا، اپنے کھلونوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھنے والا۔ اس وقت کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ بچہ مستقبل میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لے گا، دنیا اس سے فیض حاصل کرے گی، تاریخ اس پر فخر کرے گی، انسانیت اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے گی۔ بالکل ایسے ہی گمنامی کے دور میں ایک بچہ کھیل سے محبت کرنے والا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد کرکٹ کے میدان سے ایک ایسے کرکٹر جو دھواں بلے باز، میڈیم فاسٹ بالر اور ایک بہترین فیلڈر کے روپ میں ابھرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی ٹیم کا قابل اعتماد آل راؤنڈر مانا جانے لگتا ہے۔ اپنی بلے بازی کا وہ ایسا لوہا منواتا ہے کہ اس کو سلامی بلے باز کی حیثیت سے میدان میں اتارا جانے لگتا ہے۔ اپنے شہر مردیشور کی شاہین اسپورٹس کلب کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ سرسی، ہوناور، منکی، بھٹکل، شیرور حتیٰ کہ مینگلور تک کئی ایک مقابلوں میں اپنی نمایاں کارکردگی سے جیت حاصل کرتا ہے۔ تحقیق و تفتیش سے پتہ چلا کہ مردیشور کی تاریخ میں کرکٹ کے میدان سے سنچری کرنے والا یہ پہلا کھلاڑی ہے۔ اپنے روشن مستقبل سے بے خبر اور انجان ایک دن یہ نوجوان ملک ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر مردیشور سے
तलाश माश के लिए सऊदी अरेबिया पहुंच जाता है। उसने इत्तेफाक देखिए कि एक कौमी भाई जनाब सैफुल्लाह मोहम्मद अमीन साहब, जो इस वक्त मरकजी जमातुल मुस्लिमीन मुर्डेश्वर के सदर के मनसब पर फाइज हैं, आपकी नजर इस नौजवान पर पड़ती है जो इसके खेल की नुमायां कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ थी। तो आपने इसको आगे बढ़ाते हुए अपने साथ एक कंपनी अहमद अल गुसैबी की टीम में शामिल करवाते हैं। 7 समंदर पार सऊदी अरेबिया में इस नौजवान खिलाड़ी को सैफुल्लाह अमीन साहब की खैरख्वाही और कदम कदम पर आपका खुलूस और मईयत हासिल होती रही। सैफुल्लाह अमीन साहब चाहते थे कि इस उभरते हुए खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में इंतखाब किया जाए। आप ही की वजह से सन 1996 ईस्वी में ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन सऊदी अरेबिया के कई मुकाबलों में इसको जीत हासिल होती है। वाज़े रहे कि इस बीच जमातुल मुस्लिमीन तमाम सऊदी अरेबिया से मुंसलिक होकर ये नौजवान सैफुल्लाह अमीन साहब के साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से एक मुद्दत तक काम करता नजर आता है। फिर सऊदी अरेबिया की टीम के एक जिम्मेदार शख्स जनाब सज्जाद एच नवाब साहब इस नौजवान के खेल से मुतासिर होकर इसको कुवैत में जारी मिडल ईस्ट कप के लिए ये कहते हुए मुंतखब करते हैं कि ये खिलाड़ी हर एतबार से एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। इस सिलसिले में सैफुल्लाह अमीन साहब के साथ साथ खुसूसन सज्जाद नवाब साहब की भी बड़ी कोशिशें और मेहनत रही है। एक नहीं बल्कि 2 बार इस उभरते हुए खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने का सुनहरा मौका हासिल रहा। इस तरह ये नौजवान सऊदी अरेबिया की जानिब से बहरीन, दुबई, कुवैत और दीगर मुमालिक में मुकाबले के लिए जाता रहा। सऊदी अरेबिया में खेलते हुए इस नौजवान खिलाड़ी ने कई एक सेंचुरीज और डबल सेंचुरीज भी बनाकर अपना एक रिकॉर्ड बना लिया था, जिसकी वजह से इस खिलाड़ी को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल होता है। इस तरह कई साल वहां गुजारने के बाद एक दिन अचानक उसे अपने शहर मुर्डेश्वर से कौमी बहन की नागहानी मौत की इत्तिला मौसूल होती है, जिस पर सऊदी अरेबिया में मुकीम सभी अहलियाने मुर्डेश्वर बहुत ही मगमूम हो जाते हैं। मगर ये क्या, चंद ही घंटों में पता चलता है कि मौत की खबर बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। ये वाकया इस नौजवान के दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख देता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि लोग बिना तहकीक के गलत खबरें क्यों फैलाते हैं। ये वाकया इसकी जिंदगी का रुख ही मोड़ देता है। वाज़ेह है, अशिया की तहकीक इंसान की फितरत में दाखिल है। वो कुछ नहीं जानता मगर जानना चाहता है। वो हिजाबात को उठाकर पोशीदा चीजों को नुमाया करना चाहता है। अगर इंसान के अंदर तहकीक का मादा और जज्बा न होता तो वो जंगलात में जड़ी बूटियों पर तहकीक न करता, वो समंदर की गहराइयों में लूलू और मरजान का रुख ज़ेबा न देखता, वो चांद सितारों पर कमंदे न डालता, वो खलाओं के सरबस्ता राजों को न खोलता। उसे शख्सियात, कौमों और जमातों के हालात और उनके उरूज व ज़वाल की तहकीक व तफ्तीश न होती। यही जज्बे तजस्सुस और माद्दे तहकीक इस नौजवान के अंदर बेदार होता है। फिर वो लफ्जों में फसाने और लम्हों में जमाने तलाशता हुआ एक दिन अपने वतन पहुंचता है। उलुल अज़माने दानिशमंद जब करने पे आते हैं, उलुल अज़माने दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समंदर पाटते हैं, कोह से दरिया बहाते हैं। या फिर यूं कहना मुनासिब होगा, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। फिर वो सोशल वर्कर का लिबादा ओढ़कर मैदान में उतरता है। इसकी नेक नियति पर चारों तरफ से अल्लाह की मदद और नुसरत घेर लेती है और वो बैक वक्त कई तहरीकें चलाने में कामयाब होता है, जिससे हर कोई बाखबर नहीं। मैं अगर चाहूँ तो 100 रंग बदल सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो 100 रंग बदल सकता हूँ, तूने बस एक ही रंग में देखा है मुझे। आइए एक नजर उन तहरीकात पर जिसके जरिए वो नौजवानों, बच्चों और बूढ़ों अलगरज अपनी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश में सरगर्दा है। पहले ब्लड डोनेट ग्रुप। इस तहरीक के जरिए वो अस्पतालों में जेर इलाज खून की कमी के बाइस जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीजों की मदद करता है। बेरोजगार नौजवानों की रोजगार के लिए वो जॉब वैकेंसी ग्रुप के नाम से मौसूम एक तहरीक चलाकर नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने की कोशिश कर रहा है। फनी कॉमेडी ग्रुप की तहरीक के जरिए वो नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरता है। कारोबार बिजनेस ग्रुप के तहत
घरों में की जाने वाली तिजारत और मसनूआत यानी प्रोडक्ट के इश्तिहारात अवाम उन्नास तक पहुंचाता है। जन्नतुल फिरदौस ग्रुप की तहरीक से कुरान और हदीस की तालीमात और इस्लामिक नॉलेज से बहरावर करता हुआ नजर आ रहा है। गरीब, मुफलिस, नादार और मिस्कीन लोगों की तनपोशी के लिए कौम मिल्लत के दर्दमंद हजरात से कुछ नए कुछ पुराने लिबास को इकट्ठा करके कपड़ा बैंक नाम की तहरीक चलाकर सवाबेदारैन हासिल कर रहा है। अलावाजी दिन रात की तमीज किए बगैर अपने घरों में मुकीम कमजोर और ज़ईफ लोगों की दवाओं का इंतजाम भी करता है। मेरी तहकीक ये भी बताती है कि सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं बल्कि आज भी ये नौजवान अपने शहर के मुफलिस और कल्लाश लोगों तक अनाज और गल्ला पहुंचाने के लिए मकामी और गैर मकामी साहिब इस्तिताअत और साहिब सरवत हजरात से अनाज और गल्ला उसूल करता है और मुस्तहक लोगों तक पहुंचाने का बंदोबस्त करता है। याद रहे कि लॉकडाउन के इब्तिदाई दौर में जब लोग नागुफ्तबी हालात से परेशान हो गए तो इस नौजवान ने साहिब हैसियत हजरात से अनाज और गल्ला हासिल करके शहर के चप्पे चप्पे और कोने कोने के मोहताजों में तकसीम करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ माली बहरान के शिकार लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए साहिब दौलत और सरवत हजरात से राबिता कायम करके उनके बैंक अकाउंट में रकम जमा करवाता है और मुर्डेश्वर डॉक्टर ग्रुप की मदद लेकर मरीजों के इलाज और मुआलिजे के लिए बड़ी दौड़ धूप करता रहा है। इसकी इन खिदमात से मुतासिर होकर मरकजी जमातुल मुस्लिमीन मुर्डेश्वर की तरफ से अवार्ड भी हासिल होता है। अपनी कुंवारी औलाद के निकाह के लिए परेशान हाल वालिदैन की परेशानियों को दूर करने के लिए अच्छे और मुनासिब रिश्तों की निशानदही भी करता है। इन सारी तहरीकात को चलाते हुए इसका मादे तहकीक और जज्बे तजस्सुस इसको तहकीकात और नशरियात की दुनिया में ला खड़ा करता है। उस नागहानी मौत की गलत खबर का अफसोस इसको हर वक्त कचोके लेता रहता है। फिर वो अपना मोबाइल फोन उठाता है और शहर की अहम और जरूरी खबरों को जिम्मेदाराने कौम तक टेक्स्ट मैसेज के जरिए नश्र करने लगता है। देखते ही देखते वो तहरीकात और नशरियात की दुनिया का सहाफी बनकर उभरता है और सोशल मीडिया पर अपना एक चैनल बनाकर दूर दूर तक सुनने वालों के मोबाइल फोन पर अपनी एक पहचान बना लेता है। वो सामाईन चाहे बैरून मुल्क में हो या अंदरून मुल्क में, सोशल मीडिया के हजारों चैनल्स के बावजूद इस नौजवान के चैनल को फौकियत देते हैं। देर रात तक और अलग सुबह उनके मोबाइल फोन पर एक ही चैनल की धुन बजती है और आवाज आती है, यम्बी न्यूज खबर आप तक, पेशकश हिदायत मद्दास। आज हर कोई यम्बी न्यूज का मुंतजिर रहता है और हर कोई यम्बी न्यूज पर भरोसा करता है। हम सभी जानते हैं कि यम्बी न्यूज पर आने वाली हर खबर पूरी तहकीक और तफ्तीश के बाद नश्र की जाती है। इसी यम्बी न्यूज के चैनल से भाई हिदायत मद्दास ने बेशुमार ऐसी शख्सियात के इंटरव्यूज जो पसे पर्दा काम कर रहे थे और हर कोई उनसे वाकिफ नहीं था, जो शहर की मरकजी जमातुल मुस्लिमीन से मुंसलिक होकर और बैरूनी ममालिक और अंदरूनी मुल्क की जमातों से जुड़कर भी कौम मिल्लत की तरक्की के लिए तगोदो कर रहे हैं, इस मकसद से मंजर आम पर लाता है ताकि दूसरों को भी उससे तरगीब हासिल हो। लायक तहसीन है ये नौजवान जो इतना बड़ा कारनामा सिर्फ एक मोबाइल फोन से अंजाम देता आ रहा है। इसके लिए न वो अपने कंप्यूटर का, लैपटॉप का, न ही अपने बड़े कैमरे का इस्तेमाल करता है। आज का हर नौजवान अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करेगा और अल्लाह की दी हुई ख्वाबिदा सलाहियतों को बेदार करेगा तो एक दिन वो भी हिदायत मद्दास बन सकता है। तमाम मुस्लिम नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि जवानों रुख मोड़ सकते हो तो मोड़ो जवानी का, जवानों रुख मोड़ सकते हो तो मोड़ो जवानी का, अगर ताकत नहीं तुम में तो फिर तुम जवां क्यों हो। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ भाई हिदायत मद्दास को कि आपने कामयाबी की इस मंजिल पर पहुँचने के लिए जिस तरह नासाजदार हालात का मुस्कुराते हुए मुकाबला किया, अपने रास्ते पर आने वाली हर रुकावट को ठोकर मारते हुए अपने कदमों को सबात दिया, हौसला शिकन हजरात की हौसला शिकनी का जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, वाकई यह हमारे माशरे के नौजवानों के लिए एक मिसाल है। बेशक मुस्कुराते हैं जो हवादिस पर मंजिलें उनको राह देती हैं, मुस्कुराते हैं जो हवादिस पर मंजिलें उनको राह देती हैं, अहले हिम्मत के आशियानों में बिजलियां खुद पनाह लेती हैं। भाई हिदायत मद्दास की इन खिदमात से मुतासिर होकर मरकजी जमातुल मुस्लिमीन मुर्डेश्वर कोप्पा जमात, मुर्डेश्वर खुर्ग जमात, हत्ताल सुकरी इब्राहिम साहब की जानिब से
اس کو اعزاز دے کر اس کی خدمات کو سراہا گیا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اس نوجوان کو غوثیہ اسپورٹس کلب مردیشور کی جانب سے فخر مردیشور کا ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ اب یہ بات سبوں کے علم میں آ گئی کہ فخر مردیشور بھائی ہدایت مداس کرکٹ کے آسمان کا ایک ستارہ بن کر چمک اٹھا تھا۔ ایک دھواں بلے باز، میڈیم فاسٹ بالر، بہترین فیلڈر ہوتے ہوئے آل راؤنڈر کا اعزاز حاصل کیا۔ شاہین اسپورٹس کلب کے سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہو کر کئی سال اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا، پھر ایک ذمہ دار بن کر اپنے فرائض کو ادا کیا۔ بعد میں اپنی دیگر بڑھتی ہوئی مصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے شاہین اسپورٹس کلب کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے پر مجبور ہو گیا، مگر الحمدللہ تعلق باقاعدہ برقرار رکھا ہے۔ بعد اس نے ایک سوشل ورکر بن کر لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ پھر اس کے جذبہ تجسس نے اس کو تحقیقات و نشریات کی دنیا کا صحافی بنا دیا۔ بھائی ہدایت مداس کرکٹ کے میدان کا ہی آل راؤنڈر نہیں بلکہ آج معاشرے کے کئی ایک شعبوں میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے اپنے مشن میں ایک آل راؤنڈر بن چکا ہے۔ میں سلام کرتی ہوں اس نوجوان بھائی کو۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے حوصلوں کو بلند رکھے، اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اس کی بے غرض اور بے لوث خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ زندگی کے کئی شعبوں میں فخر مردیشور بھائی ہدایت کی پرخلوص خدمات کو دیکھ کر میری زبان اور میرے قلم دونوں میں تھوڑی سی تکرار چل رہی ہے۔ میرا قلم لکھنا چاہتا ہے کہ میں خود تراشتا ہوں زمانے کے سنگ میل، میں خود تراشتا ہوں زمانے کے سنگ میل، میں وہ نہیں جس کو زمانہ بنا گیا۔ اور میری زبان کہنا چاہتی ہے کہ وہ زبان حال سے یوں گویا ہے کہ کس میں ہمت ہے، کس میں ہمت ہے میری پرواز میں خلل ڈالے، میں پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتا ہوں۔ میری زبان صحیح کہہ رہی ہے یا میرا قلم؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔